Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at Chemistry Online class, Chapter 1 Stoichiometry. Today is the 5th lecture of this chapter. In today's lecture, we will study about the percentage composition, percentage yield and numericals of these both topics. Let's start from the first one, that is a percentage composition. The definition of percentage composition is the relative amount of each element present in a compound are expressed as the percentage composition. For example, if we have a molecule that is a magnesium oxide, so the percentage of magnesium in the molecule is 60.3, the percentage of oxygen in the molecule is 39.7, so the sum of percentage must be equal to the 100. Okay, the formula for the percentage composition is mass of element in 1 mole of compound divided by molar mass of compound. Okay, for example, here we should know the molar mass of the magnesium oxide, complete molecular formula, and multiply by 100. So we can calculate the percentage of each element in the compound. Now let's have an example. For example, we have to calculate the percentage composition of sulfuric acid. We know very well the molecular mass of the molar mass of the sulfuric acid is 98.09 gram per mole. Now by the formula we will calculate the each element of the compound. First of all, let's calculate the percentage of hydrogen in the compound. For this purpose, we will divide the mass of hydrogen with the molar mass of sulfuric acid, that is the 98. Mass of hydrogen in the sulfuric acid 2, because there are 2 moles of, or you can say 2 atoms of hydrogen in the compound. So 2.02 divide with the molar mass of sulfuric acid, so we will have the percentage of hydrogen in the compound, that is 0.02055. Now calculate the percentage of sulfur. For this purpose, atomic mass we know, atomic mass of sulfur is 32.07, molar mass of sulfuric acid 98.09, so the percentage of sulfur in the compound would be 0.3270. Now calculate the percentage of oxygen, that is oxygen. Percentage of oxygen, mass of oxygen in the compound, as there are 4 atoms of oxygen, the atomic mass of one oxygen is 16, so multiply by 4, we will have the 64. So the mass of the oxygen in the above compound is 64, divided by the molar mass of sulfuric acid, we will have the 0.6525. So हाइड्रोजन परसेंटेज 2.05, परसेंटेज ऑफ सल्फर हमारे पास कितनी आई है 32.70, एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास आई है 65.25. अगर हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी, अगर इसको सबको सम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 100. ओके, बाय दिस मेथड स्टूडेंट हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिविजुअल एक एक एटम का या एक एक एलिमेंट का हमें separately percentage calculate करना होगा. Okay, now come to the second topic of the lecture, theoretical yield, actual yield and percentage yield. For percentage yield, first of all we should know what is theoretical yield and actual yield. Theoretical yield is actually the maximum amount of product calculating using the balanced chemical equation. The maximum amount of product calculated using the balanced chemical equation. ओके हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा दैट विल बी नोन एज थियोरेटिकल यील्ड. एक्चुअल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस, और यू कैन से एक्चुअल यील्ड को हम इसके अलावा भी कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड. ओके, ये वो यील्ड होती है जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, जो एक्चुअली हमारे पास आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो यील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड. नाउ फॉर द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, सेम एक्चुअल यील्ड दैट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो कि आपके पास लैब से आते हैं, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग. थियोरेटिकल यील्ड जो कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या मालूम कर सकते हैं, दैट इज़ अ थियोरेटिकल यील्ड. उसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, देन वी कैन ऑब्टेन द परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड स्टूडेंट हम क्यों मालूम करते हैं, ये मेनली हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर लैब में परफॉर्म करने होते हैं तो ये देखने के लिए कि अगर हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू अगर हमें गिवन हो तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास कितना लॉस प्रोडक्ट में आता है. ओके,
मतलब मेनली हमें फ्रॉम द थ्योरेटिकल यील्ड इतना आना चाहिए था, बट हमारा रिएक्शन कितना सक्सेसफुल रहा है, हमारे पास कितना एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि हमारा रिएक्शन कितना सक्सेसफुल रहा है। रीज़न वाई द एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी हम लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आती है जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आती है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन के ज़रिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हमारे पास जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतनी यील्ड एक्सपेरिमेंटली हमारे पास नहीं प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमेशा एक्चुअल यील्ड वुड बी लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, what is the reason? First is the formation of byproduct due to the side reaction. There may be any byproduct can form during the chemical reaction. Second is the reversible reaction may not go to the completion. Okay, हमारे पास reversible reaction completion की तरफ ना जाए. That may be reason क्या हो सकता है? Not waiting long enough, बहुत ज़्यादा हम वेट ना कर सकें, हम फ़ौरन ही रिएक्शन को स्टॉप कराने की कोशिश करें. सेकेंड हमारे पास नॉट मिक्स, हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए हैं. एंड थर्ड, रिएक्शन में नॉट रीच 100% कम्प्लीशन. ठीक है, हमने रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही हमने किसी तरीके से उसको रोक दिया. तो इस तरह से रिएक्शन में नॉट रीच 100% कम्प्लीट, तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है. ये द थर्ड रीज़न. थर्ड रीज़न भी हमारे पास हो सकता है, दैट मे बी ड्यू टू द मैकेनिकल लॉस. मैकेनिकल लॉस हमारे पास किस किस तरह का हो सकता है? फिल्ट्रेशन हमने सही नहीं की है, उसमें हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लॉस हो गया हो. डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने सही ना किया हो, वॉशिंग हमने सही ना की हो. ठीक है, या वॉशिंग में हमारे पास कुछ जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो गया हो. एंड इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारे पास सही ना हुआ हो. तो इस तरह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा लेस होती है देन द थ्योरेटिकल यील्ड. Okay, now here's an example. For example, using stoichiometric amount, you can calculate that a reaction of oxygen gas is in excess of hydrogen gas would yield 28.3 gram of water. Theoretical yield from this equation हमारे पास आना चाहिए about water कितना produce होना चाहिए 28.3 gram from the stoichiometric amount. फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास 28.3 थ्योरेटिकल यील्ड आनी चाहिए. बट व्हेन वी परफॉर्म इन द लेबॉर्ट्री, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री, यू मेजर द 26.3. ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा सा लॉस हुआ है, हमारे पास 26.3 आ गया है. अदरवाइज फ्रॉम द स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू हमारे पास 28.3 आना चाहिए था. नाउ बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज यील्ड हम क्या करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारे पास आ जाएगा कि हम कितना लॉस हुआ है, हमारा जो रिएक्शन है वो कितना सक्सेसफुल रहा है. ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी परसेंटेज यील्ड. नाउ वी हैव अ सैम्पल प्रॉब्लम 1.9 दैट इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, लुक एट द क्वेश्चन. इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल was prepared by the following reaction. हमने जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं with the copper sulfate, then we will obtain the zinc sulfate and copper metal. 1.27 gram of copper sulfate when react with the excess of zinc metal. How much? 1.274 gram of copper sulfate when react with the excess zinc metal, a yield of 0.329 copper metal was obtained. Now calculate the percentage yield. ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और हमने अब कैलकुलेट करना है. ये 0.392 हमारे पास क्या है? हमने जब लैब में परफॉर्म किया है, लैब में परफॉर्म करके हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड आई है दैट इज़ द 0.329. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड. for the formula of percentage yield, what is the formula of percentage yield? That is actually the actual yield divided by theoretical yield. तो हमें यहाँ पर कौन सी yield given है? That is the actual yield. एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है. अब हमें फॉर फार्मूला हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. इफ़ यू रिमेंबर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे. अबाउट उसी तरह के स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं. सबसे पहले आपको जो मास गिवन है कॉपर सल्फेट का दैट इज़ 1.274 एंड फ्रॉम दिस मास यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट.
Okay, what is the formula to calculate the mole of any substance? Mass divided by molar mass. Okay, molar mass of the copper sulfate, how can we calculate? Molar mass of the copper sulfate is 159.6. For the moles, how can we calculate? 1.274, that is the mass given in the question. Divide with the molar mass, then we will obtain the moles of the copper sulfate. Okay, जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस था उसके हमने मोल्स कैलकुलेट कर दिए. नाउ कम टू द स्टेप 2. Step 2, find the gram mass of the copper by the equation, that is the theoretical yield. Now we are going to calculate the theoretical yield. Step 1 में हमारे पास मोल्स आ गए हैं कॉपर सल्फेट के स्टूडेंट. अब हमें कॉपर सल्फेट के थ्रू कॉपर मेटल के मोल्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास कॉपर सल्फेट के मोल्स आ गए हैं, तो हम कॉपर मेटल के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम मोल रेशो अप्लाई करेंगे. आपको समझाया था ना मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मोल रेशो अप्लाई करते हैं. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कॉपर. सो 1 mole of copper sulfate produce 1 mole of copper, so 7.982 exponent 3 moles of copper will produce. कितना प्रोड्यूस करेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन के अंदर कॉपर सल्फेट, लेट मी राइट अगेन, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर दोनों का कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, दोनों वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है उतना ही हमारे पास कॉपर मेटल प्रोड्यूस होगा, बिकॉज देयर इज़ अ 1-1 रेशो. नाउ इन स्टेप 3 हम लोग क्या करते थे? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. फिर हम लोग क्या करते थे? हम कैलकुलेट करते थे मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस. मास के लिए फिर हम लोग क्या करते थे? फार्मूला अप्लाई करते थे, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स. जब हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक मास है कॉपर का, दैट इज़ द 63.5. मोल्स जो हमारे पास कॉपर के आ गए हैं, दैट इज़ द 7.98. बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द 0.5072 ग्राम ऑफ द मास ऑफ द कॉपर मेटल. तो एक मास हमारे पास ये गिवन है विच इज़ द एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जो कि हमारे पास हमने कंप्लीट रिएक्शन परफॉर्म किया. आफ्टर रिएक्शन हमारे पास 0.329 कॉपर मेटल ऑब्टेन हुआ. और ये जो हमारे पास है दैट इज़ द 0.5072 ग्राम, दैट इज़ एक्चुअली द विच यील्ड? दैट इज़ एक्चुअली द एक्चुअल यील्ड, सॉरी theoretical yield. That is actually the theoretical yield, जो कि हमारे पास इक्वेशन के ज़रिए हमें आई है कि ये होना चाहिए था. नाउ कम टू द थर्ड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में हमारे पास जब दोनों यील्ड हमने कैलकुलेट कर दी हैं, एक्चुअल यील्ड भी एंड एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी. नाउ इन थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई द परसेंटेज यील्ड फार्मूला. परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है हमारे पास? थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ द 0.5072. theoretical yield, actual yield हमारे पास आ गई है, that is a 0.392. now apply the formula actual yield divided by theoretical yield multiply by 100. by putting the value in the formula we will obtain the 77.3%. ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई है. आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो 77.3% सक्सेसफुल रहा है, और बाकी हमने जितना हमारे पास परसेंटेज से कम वैल्यू आई है तो ये हमारे पास लॉस हुआ है. ठीक है, हमारे पास रिएक्शन में अबाउट कितना परसेंट हो गया? दैट इज़ अबाउट द 80, 90, 23%. अबाउट 23% हमने लॉस किया है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ कम टू द सैम्पल प्रॉब्लम 1.10 फ्रॉम योर बुक. ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. इन अ रिएक्शन 2 moles ऑफ मीथेन was reacted with an excess of Cl2. as a result 177.0 gram of carbon tetrachloride is obtained. what is the theoretical yield, actual yield and percentage yield? obviously student, अब आप खुद भी बता सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ theoretical yield है and which one is the actual yield. okay, अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यू लिखी है that is the 177.0. ये वैल्यू क्योंकि हमारे पास परफॉर्म करके आई है तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
मीथेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग द स्टेप बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्टेप 1 में हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे उस सब्सटेंस के जिसका मास गिवन था, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे लिए स्टेप 1 का जो मोल्स हमें कैलकुलेट करने थे वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नाउ कम टू द स्टेप 2, find gram mass of copper by the equation theoretical yield we have to calculate। और यहाँ पे हमारे पास पहले से जो हमें गिवन है दैट इज़ द एक्चुअल yield। ठीक है, अब हम theoretical yield कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइंग द मोल रेशो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास आ रहा है। नाउ इन क्वेश्चन वी हैव द 2 मोल्स ऑफ मीथेन। ठीक है, बाय अप्लाइंग द मोल रेशो, क्योंकि हमारे पास सेम कोफिशिएंट है तो इसलिए हमारे पास जब 2 मोल्स मीथेन होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 मोल्स CCl4 दैट इज़ द कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। नाउ कन्वर्ट द मोल्स इनटू द ग्राम। अब सिंपल आप मोल मास मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं मोल्स से। ठीक है, मोल्स हमारे पास आ गए हैं दैट इज़ द 2 मोल्स, और हमारे पास CCl4 का जो हमारे पास मोलर मास है दैट इज़ द 154। ओके, 154 किस तरह से आया हमारे पास, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 12, और हमारे पास क्लोरीन, एक क्लोरीन का मास हमारे पास है 35.5 क्योंकि 4 क्लोरीन है मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा दैट इज़ द 154। नाउ मल्टीप्लाई 154 मल्टीप्लाई बाय 2 वी ऑब्टेन हेयर दैट इज़ द मास ऑफ द विच सब्सटेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, दैट इज़ 308। अब हमारे पास स्टूडेंट दोनों चीज़ें आ गई हैं, एक हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज द एक्चुअल यील्ड, हियर वी कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। नाउ इन स्टेप 3 क्या करेंगे हम लोग, वी विल अप्लाई द formula, we will calculate the percentage yield by the formula। theoretical yield 308, actual yield 177.0 gram। by applying the formula actual yield divided by theoretical yield, by putting the value in the formula, we obtain the percentage of the carbon tetrachloride and that is 57.46%। यू मे सी कि हमारा ये जो हमने परफॉर्म किया है ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारे पास जो प्रोडक्ट की यील्ड आई है दैट इज़ द 57.46, और बाकी 100 में से अगर हम 57 को माइनस करते हैं तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दैट इज़ एक्चुअली द लॉस ऑफ द प्रोडक्ट यील्ड। ये हमारे पास लॉस हुआ है, एंड लॉस मैंने आपको बता दिया था कि रीज़न डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द होम एक्सरसाइज। होमवर्क एक्सरसाइज फर्स्ट इज द सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंस टिडबिट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, आपकी बुक में गिवन है, और यहाँ पे अबाउट 2 क्वेश्चंस हैं अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द बैलेंस फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिलो इफ द रिएक्शन 40.8 gram of the substance is given produce at 39.0% yield, how many grams of water would be produced। ठीक है, आपने यहाँ पर परसेंटेज यील्ड किसकी मालूम करनी है, वाटर की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपके पास यहाँ जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है, आप इसके थ्रू परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शंस नेवर गो टू द कंप्लीशन। इट्स मीन नेवर गो टू द कंप्लीशन मीन्स द रिएक्शन इज मेनली रिवर्सिबल। ओके, ये रिवर्सिबल है, इस वजह से कभी कंप्लीट नहीं होगा। देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन देन एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू। इफ 40 gram of hydrogen produce 120.2 gram of ammonia, if 40 gram of hydrogen provide the 120.2 gram of ammonia, calculate the percentage yield। ठीक है, आपको अमोनिया की परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, ये जो आपको वैल्यू गिवन है दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइड कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12 and O6। आपने पहले कार्बन का अलग से निकालना होगा। ठीक है, आपके पास कितने कार्बन है उसको डिवाइड करना होगा ग्लूकोज के मोलिकुलर मास से। ग्लूकोज का मोलर मास जो है दैट इज़ 180। ठीक है, तो आप पहले कार्बन का कैलकुलेट करेंगे, फिर हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे, फिर इन द लास्ट आप ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे। और ये देखने के लिए कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन सही कैलकुलेट किया है या नहीं, आप तीनों के सम को प्लस कर देंगे, तीनों के जो आपके पास परसेंटेज आएगी उसको सम कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। योर चैप्टर इज completed here।
Now try to solve the exercise. First of all do the MCQs, then short question answer and detailed question answer. जो भी आपको reasons और numericals हैं, try to solve the exercise of the chapter. Hopefully students आपको ये चैप्टर और आज का लेक्चर और ये चैप्टर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे. आई एम श्योर कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको क्लियर नहीं होगी. फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.